Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So today's point of discussion will be Section 96 to Section 99 of Indian Penal Code, which is a part and parcel of chapter of right of private defense. So we will discuss when the person is having a right of private defense to protect his body as well as the body of other person and the property of other person, in what manner he is entitled to take the defense of right of private defense, as well as we will discuss that how the right of private defense is available against the person who is suffering from unsoundness of mind. तो आज के हम लेक्चर में सेक्शन 96 टू सेक्शन 99 डिस्कस करने वाले हैं। इसमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे हम कि बॉडी के अगेंस्ट में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या है, अगर कोई पागल अटैक करता है तो उसके अगेंस्ट में प्राइवेट डिफेंस क्या है, ये भी हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Right of Private Defense, Part 1st, Section 96 to 99 of Indian Penal Code 1860. So Section 96 deals with things done in private defense. So nothing is an offense which is done in the exercise of the right of private defense. Suppose if a person has committed any act which comes under the category of offense, and if he does that particular act in exercise of right of private defense, then that act will not comes under the category of any offense. अगर कोई पर्सन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में कोई एक्ट करता है तो वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा। दैट इज डिस्कस अंडर सेक्शन 96। तो सेक्शन 96 ने ये क्लियर किया कि मैं अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में मैंने खुद को डिफेंड करने के लिए कोई एक्ट करता हूं तो वो मेरा एक्ट ऑफेंस नहीं कहलाएगा, भले ही ऑर्डिनरी सेंस में ऑफेंस हो, लेकिन मैंने अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में एक्ट किया तो दैट विल नॉट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑफेंस। सो दैट इज मेंशन अंडर सेक्शन 96। नाउ सेक्शन 97, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी। सो every person has a right subject to the restriction contained in section 99 to defend first his own body and the body of any other person against any offense affecting the human body. So section 97 deals with every person is having a right, हर एक को right है, subject to the restriction contained in section 99, but while exercising such a particular right there are a certain restriction which the person must keep in mind, and that restriction are laid down under section 99 of Indian Penal Code, which we will discuss later on. So to defend his own body and the body of any other person against any offense affecting the human body. So every person is having a right to protect his own body. I am having a right to protect my body अगेंस्ट एनी पर्सन। अगर मुझ पर कोई अटैक करता है, अगर मेरे बॉडी को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो मुझे राइट है खुद को डिफेंड करने का। As well as I am having a right by virtue of section 97 to protect the body of other person. मेरे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का मुझे राइट है, साथ ही साथ मेरे सामने अगर किसी और के बॉडी को कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है तो आई एम हैविंग अ राइट टू प्रोटेक्ट द बॉडी ऑफ अदर पर्सन ऑल्सो। तो मैं किसी और को भी बॉडी को बचाने के लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकता हूं। Secondly, the property, whether movable or immovable, of himself or of any other person against any act which is an offense falling under the definition of theft, robbery, mischief or criminal trespass, or which is an attempt to commit theft, robbery, mischief or criminal trespass. So not only I am having a right to protect my body, but I am having a right to protect my property also. तो सिर्फ मेरा राइट मेरी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का नहीं है, बल्कि सेक्शन 97 प्रोवाइड्स सच अ राइट टू द प्रॉपर्टी ऑल्सो। मैं अपने प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये राइट का एक्सरसाइज कर सकता हूं। सपोज
अगर कोई मेरी प्रॉपर्टी चोरी करने की कोशिश कर रहा है या मेरी प्रॉपर्टी को नुकसान करने पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो उस सिचुएशन में मैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता हूं, मैं उसको वहां से भगा सकता हूं, और वो भगाने के दौरान अगर मैं उसको इंजोर भी करता हूं, उस सिचुएशन में आई कैन टेक द डिफेंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो मैं ये कह सकता हूं कि मैंने जो उसको नुकसान पहुंचाया वो मेरे प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए नुकसान पहुंचाया, लाइक दैट। तो रेस्ट्रिक्शन कुछ है जो सेक्शन 99 में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहां पर ये बात ध्यान में रखिए कि यहां पर स्पेसिफिकली मेंशन किया है सेक्शन 97 ने कि हर पर्सन को अपनी बॉडी और अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है, और वो प्रोटेक्ट करते हुए अगर किसी एक्ट करता है तो वो एक्ट ऑफेंस नहीं कहलाएगा। साथ ही साथ किसी और की बॉडी को प्रोटेक्ट करने का भी है और किसी और की प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्ट करने का राइट है, और वो प्रोटेक्ट करते हुए अगर कोई ऑफेंस होता है या कोई एक्ट होता है तो वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा। दैट इज मेंशन अंडर सेक्शन 97। अब देखो कि सेक्शन 97 पे पूछा गया क्वेश्चन है मध्य प्रदेश जुडिशियल एग्जामिनेशन 2017 में, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू डिफेंस ऑफ बॉडी ओनली, डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी ओनली, डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी बोथ, नन ऑफ द अबोव। तो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सेक्शन 97 ये कहता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड द प्रॉपर्टी। टाइटल ऑफ सेक्शन 97 itself suggests that the right of private defense is available against body as well as against property. So defense of body and property both is a correct answer, option third. अभी देखिए उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू ऑल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड एज ऑफ द पर्सन एक्सेप्ट पुलिस ऑफिसर, ऑफिसर्स ऑफ आर्म फोर्स, एग्रेसर्स एंड ऑफिसर ऑफ BSF। देखो, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू ऑल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड एज ऑफ पर्सन एक्सेप्ट एग्रेसर। तो पुलिस ऑफिसर को भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करने का पावर है, ऑफिसर ऑफ आर्म फोर्स को भी है, ऑफिसर ऑफ BSF को भी है। सिर्फ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कौन यूज नहीं कर सकता है? एग्रेसर। मैं अगर अटैकर हूं, मैंने किसी पे अटैक किया और मैं ही राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकता हूं, दैट्स व्हाई एग्रेसर कैन नॉट यूज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। देन Section 98 deals with right of private defense against the act of a person of unsound mind। अब यहां पर सेक्शन 98 ये कहता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक आधा पर्सन है जो पागल है, वो अगर आप पे अटैक करता है तो उसके अगेंस्ट में आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है या नहीं है, दैट इज डिस्कस अंडर सेक्शन 98। सो व्हेन एन एक्ट व्हिच वुड अदरवाइज बी अ सर्टेन ऑफेंस is not that offense by reason of the youth, the want of maturity of understanding, the unsoundness of mind or the intoxication of the person doing that act, or by reason of any misconception on the part of that person। हमने ऑलरेडी देखा कि जनरल एक्सेप्शन में if any person who is suffering from unsoundness of mind and if he commit any offense he can take the defense। वो बोल सकता है कि मैंने पागलपन में ऑफेंस किया और उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है, यानी पागल कोई ऑफेंस करता है तो लायबिलिटी नहीं है। बट सपोज पागल अटैक करता है किसी और पे, तो जिस पे भी अटैक किया उसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है या नहीं है, सेक्शन 97 ये कहता है। सो एवरी पर्सन हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट दैट एक्ट विच ही वुड हैव इफ द एक्ट वेयर दैट ऑफेंस। समझ रहे हो? तो अनसाउंड माइंड पर्सन ने भी आप पे अटैक किया तो आपको सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है। आप खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर उसको इंजोर भी करते हैं तो यू कैन टेक द डिफेंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो पागल के अगेंस्ट में भी आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल रहेगा। सब देयर इज एन एग्जांपल, जेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस अटेम्प्ट्स टू किल ए। जेड ने पागलपन के दौरान ए को मारने की कोशिश किया। जेड इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस, जेड ने ऑफेंस नहीं किया कोई, समझ रहे हो, क्योंकि वो पागल था ऑफेंस करते वक्त, तो जनरल एक्सेप्शन में आएगा, उसने ऑफेंस नहीं किया। जेड इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस, उसने ऑफेंस नहीं किया, बट ए हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विच ही वुड हैव इफ जेड वेयर सेम। तो ए को तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है। अगर फॉर एग्जांपल जेड जो पागलपन के दौरान उसने अटैक किया, अगर वो पागल नहीं होता, अच्छा होता, तो जितना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ए को अवेलेबल रहता, जेड के अगेंस्ट में सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विल बी अवेलेबल इवन इफ ही इज मैड। समझ रहे हो कि अगर वो अच्छा रहता तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है मुझे, तो वो पागल भी है तो उतना ही राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल रहेगा। इन शॉर्ट
सेक्शन 98 ये कहता है कि पागल भी आप पे अटैक करता है, भले ही वो अटैक किया तो ऑफेंस नहीं है पागल के लिए, लेकिन आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है पागल के अगेंस्ट में। सो देखो, ए इंटर्स बाय नाइट a house which he is legally entitled to enter. Z, in good faith, taking A for a housebreaker, attacks A. Here Z, by attacking A under this misconception, commits no offense, but A has the same right of private defense against Z which he would have if Z were not acting under the misconception. So A enter हुआ रात में हाउस में, विच ही इज लीगली इंटाइटल टू इंटर, वो लीगली इंटाइटल था, वो ए इंटर हुआ हाउस में, लेकिन जेड को मिसकंसेप्शन हुआ कि ये हाउस ब्रेकर है, और उस सिचुएशन में क्या हुआ, जेड ने ए पे अटैक किया। अब जेड ने मिसकंसेप्शन में अटैक किया ए पे कि ये हाउस ब्रेकर है उसमें, तो जेड का तो कोई ऑफेंस है ही नहीं क्योंकि वो मिसकंसेप्शन में उसने किया है, लेकिन ए को जेड के अगेंस्ट में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है। अगर वो एक्ट करता भी है कुछ तो उसका एक्ट ऑफेंस नहीं कहलाएगा क्योंकि वो मिसकंसेप्शन में था। समझ रहे हो? नाउ 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है सेक्शन 98 पे उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन में, ए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड attempt to kill B. B in attempting to defend himself caused grievous hurt to A. Here, A is liable for attempt to murder and B is liable for causing hurt. A commits no offense and B is liable for grievous hurt. B commits no offense and A is liable for attempt to murder. Both A and B are excused from liability. तो हमने देखा कि A ने पागलपन के दौरे में उसको मारने की कोशिश किया। अब देखिए कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ए ने तो कोई ऑफेंस नहीं किया और बी ने भी जो एक्ट किया वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में किया, तो क्या होगा यहाँ पर, बोथ ए एंड बी आर एक्सक्यूज फ्रॉम लायबिलिटी। तो दोनों की भी कोई लायबिलिटी नहीं होगी क्योंकि ए पागलपन में अटैक किया और बी ने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज किया, तो दोनों की भी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। नाउ सेक्शन 99, एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ऐसे एक्ट जिसके अगेंस्ट में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा, दैट इज मेंशन अंडर सेक्शन 99। सो नो राइट इफ देयर इज नो एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। समझ रहे हो कि द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट अवेलेबल इफ देयर इज नो एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। मुझ पर इस तरीके का अटैक ही नहीं हुआ जिससे मुझे ये डर लगे कि एक तो मेरी जान जा सकती है, मुझे कोई इंजुरी हो सकती है, तो मेरे लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं रहेगा। अगर मुझे जान जाने का डर है या मुझे इंज्योर कर सकता है वो अटैकर, अगर ये डर है तो आई एम हैविंग अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट दैट पर्सन, उसके अगेंस्ट में मुझे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल रहेगा, अदरवाइज नॉट। इफ डन बाय पब्लिक सर्वेंट, देखिए नो राइट इफ देयर इज नो एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, इफ डन बाय पब्लिक सर्वेंट अंडर ऑफिस और इफ एक्टिंग अंडर द डिस्क्रिशन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। ये जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किसके अगेंस्ट में अवेलेबल नहीं है, अगर पब्लिक सर्वेंट है जो उसके ऑफिशियल ड्यूटी में कोई काम कर रहा है और उसके काम के वजह से ना तो जान को धोखा है ना तो ग्रीवियस हर्ट होने का टेंशन है, तो उसके अगेंस्ट में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं किया जा सकता। सो नो राइट इफ देयर इज अ टाइम टू हैव, देखो इन गुड फेथ अगर कोई एक्ट कर रहा है, सपोज ऐसा एक्ट जिससे ना तो जान को खतरा है ना तो ग्रीवियस हर्ट का है, और वो गुड फेथ में अगर कोई कर रहा है एक्ट, तो उसके अगेंस्ट में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा, इवन इफ नॉट स्ट्रिक्टली जस्टिफाइड बाय लॉ। ऐसा एक्ट जो स्ट्रिक्टली जस्टिफाइड बाय लॉ नहीं है, लेकिन वो एक्ट से ना तो जान को खतरा है ना तो ग्रीवियस हर्ट होने का टेंशन है, तो उस सिचुएशन में भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं रहेगा। अब देखिए नो राइट इफ देयर इज अ टाइम टू हैव रिकोर्स टू प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। अब एक चीज है कि राइट अवेलेबल कब नहीं रहेगा, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल कब नहीं रहेगा। सपोज अगर मुझ पर कोई अटैक करता है, अगर फॉर एग्जांपल मैं घर में अंदर हूं और बाहर से कोई अटैकर है और बाहर से अटैकर को घर में इंटर होने के लिए टाइम है, अभी वो इंटर हो सकते हैं, उस दौरान अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास इतनी फैसिलिटीज है कि मैं पुलिस को कॉल कर सकूं, किसी की मदद मांग सकूं, तो मैं मदद मांगना पड़ेगा मुझे। अगर मैं मदद नहीं मांगते हुए डायरेक्टली राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करता हूं तो मेरे लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का डिफेंस अवेलेबल नहीं रहेगा, तो मैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यहां पर यूज नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं मेरे पास अल्टरनेटिव थे, दूसरों से मदद मांगने के में चांसेस थे, तो उस सिचुएशन में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं रहेगा। राइट डज नॉट एक्सटेंड टू इन्फ्लिक्टिंग
more harm than necessary for the purpose of defense. अब सेक्शन 99 ये कहता है द एक्ट मस्ट बी इन प्रोपोर्शनेट, मुझे जितना इंजरी होने का चांस है मैं उतना ही राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता हूं. फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने निहत्था है, उसके हाथ में कोई वेपन नहीं है और उसने मुझ पर अटैक किया, मुझे मारने की कोशिश कर रहा है वो, और मैंने उसको गन निकाल कर अगर शूट कर दिया तो दैट विल बी excessive use of right of private defense. I cannot take the defense of right of private defense. उस सिचुएशन में मैं right of private defense यूज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो हाथ से मुझे मारने की कोशिश कर रहा था और वो हाथ से मुझे मारता भी तो मेरी जान नहीं जाती, मेरी डेथ नहीं होती. तो मैं जब मेरी डेथ का चांसेस ही नहीं है तो मैं किसी को जान से नहीं मार सकता हूं. तो एक चीज ये जरूरी है कि जितना अटैक हुआ उतना ही डिफेंस का प्रोविजन है, उससे ज्यादा यूज नहीं कर सकता है कोई भी पर्सन. अब एक्सप्लेनेशन है यहां पर, अ पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट डन और अटेम्प्ट टू बी डन बाय पब्लिक सर्वेंट और एज सच अनलेस ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन डूइंग द एक्ट इज सच अ पब्लिक सर्वेंट. अब पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में ये जो बताया जा रहा है कि कोई पब्लिक सर्वेंट अगर कोई एक्ट करता है ऑफिशियल ड्यूटी में तो उसके अगेंस्ट में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है. समझ रहे हो? अगर उसका एक्ट डेथ कॉज करने का नहीं है या ग्रीवियस हर्ट करने का नहीं है तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते. एक्सप्लेनेशन में क्लियर किया कि ये कब है कि अगर मुझे पता है कि वो पब्लिक सर्वेंट है और वो ऑफिशियल ड्यूटी में काम कर रहा है तब मैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकता. बट सपोज मुझे पता ही नहीं है कि वो पब्लिक सर्वेंट है, उस सिचुएशन में आई एम हैविंग अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. उस सिचुएशन में मुझे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल रहेगा. एक्सप्लेनेशन 2, a person is not deprived of the right of private defense against an act done or attempt to be done by the direction of a public servant unless he knows or has reason to believe that person doing the act is acting by such a direction, or unless such person states the authority under which he acts, or if he has authority in writing unless he produces such authority if demanded. अब देखो, कोई पर्सन पब्लिक सर्वेंट के अथॉरिटी में काम कर रहा है, उसके डायरेक्शन के हिसाब से काम कर रहा है, तब भी उसके अगेंस्ट में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं रहेगा. लेकिन अगर मेरे अगेंस्ट में कोई पब्लिक सर्वेंट का सबऑर्डिनेट उसके अथॉरिटी के अंडर काम कर रहा है, वो मेरे अगेंस्ट में कोई एक्ट कर रहा है, अगर मुझे पता ही नहीं है कि वो अथॉरिटी में वर्क कर रहा है, उस सिचुएशन में मुझे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल रहेगा. राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल कब नहीं है? अगर मुझे पता है कि ये पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन में वो काम कर रहा है, तब मुझे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं रहेगा. तो पता रहना जरूरी है कि वो पब्लिक सर्वेंट है या तो पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन में काम कर रहा है. अगर ये पता है मुझे तो आई एम हैविंग नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 99. So these are the provision section 96 to 99 which we have discussed in today's lecture. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you. Thank you.